Assalamu alaikum, my students of class 8th. You know, we are learning English, but before we introduce our board summary, for the last 2 days, I was not in position to deliver my classes owing to my neck was hurting and owing to certain exigence on 18th of August, I was not able to deliver my class on 18th. We are reading a story, Rustum and Sohrab. Rustum is playing a role of warrior for Persia, and for Tatar his son Sohrab is playing another warrior of Tatar army. Today's lesson, our morning lesson, is last lines of last para of this story, how it concludes, how Rustum know that this Sohrab, or my son, which has been killed by the hands of his father Rustum, how he identify his son when he left his wife. Before leaving his home to join in the empire of Caicus, he advised her wife to tie this precious stone. When his eyes or when he sighted this stone on the arm, then he realized that this person is my son, that is Sohrab. So this is our last para, page number 104 and 105, and today is 19th of August 2020. Dear students, I would like to pose some one or two questions which we read previously. The two warriors continued fighting for, I will give you
three options. Number one option is 3 days. Number two option is 2 days. Number three option is 4 days. So please correct your answer by hearing these three options. Yes, it is correct that option first, that is 3 days. Number two question, what was Rustum's war cry? Rustum's war cry, रुस्तुम का जंगी नारा क्या था? जब वो जंग पर निकलते थे तो किस आवाज़ से वो उस जंग को किस आवाज़ में उसको नारा देते थे? तो इसमें यहाँ पर तीन ऑप्शंस है. नंबर वन इज़ रुस्तुम, नंबर टू इज़ अटैक, नंबर थ्री इज़ फायर. What was Rustum's war cry? The correct answer is Rustum. जब उसके बेटे ने जब 1-to-1 लड़ाई चल रही थी तो जब उसने रुस्तुम का जंगी नारा सुना तो उसकी जो हिम्मत थी वो टूट पड़ी. Right short answer to this question, what made Sohrab's unnerved for a moment? कुछ देर के लिए किस चीज ने रुस्तुम की हिम्मत को तोड़ दिया, या रुस्तुम की जो करेज थी उसको कैसे डिस्करेज किया? तो इसका क्वेश्चन है व्हेन सोहराब, इसका आंसर है व्हेन सोहराब हर्ड रुस्तुम्स वार क्राई ही वाज अननर्व्ड फॉर ए मोमेंट. उसकी जो हिम्मत थी वो कुछ देर के लिए टूट गई और इसके साथ ही वो ज़मीन पर गिर पड़े. तो वहाँ पर रुस्तुम उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर उसको मार दिया जाता है अपने बाप के ज़रिए से. So this was the questions for your reminder. Now I would like to start this lesson. Yes, he had, and I am that son, replied Sohrab. तो सोहराब ने यहाँ पर ये जवाब दिया. पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि रुस्तुम ने सोहराब से कहा था कि मेरा कोई बेटा नहीं था. रुस्तुम नेवर हैड अ सन. लेकिन यहाँ पर सोहराब यह कहता है हाँ उसका बेटा था. Yes he had. Yes he had. And I am that son. मैं ही वो तुम्हारा बेटा हूँ. Replied सोहराब. सोहराब ने जवाब दिया. At these words, Rustum dropped on knees.
जो ही ये लफ्ज रुस्तुम ने सुने वो शेकिंग हो गया, उसका एक नर्वस हो गए ये सुनकर कि जिस बंदे को मैंने मार डाला यही मेरा बेटा है. एट दीज वर्ड्स रमन ड्रॉप्ड, नीचे घुटनों के बल, ड्रॉप्ड ऑन हिज नीज, उसके घुटनों पर. Here it shows that Rustum bent upper body forward and down while standing or kneeling. थोड़े से उसके घुटनों में एक टीढ़ापन आ गया और उसकी पूरी जो बॉडी थी वो नीचे आ गई. He bent over Sohrab's body. तो उसकी बेंड इसका पास्ट टेंस है. बेंट ओवर प्रेजेंट टेंस, बेंट ओवर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. So he bent अपर बॉडी, उसका पूरा जो ऊपर की जो बॉडी थी टांगों से ऊपर या नीज के ऊपर, घुटनों के ऊपर से बॉडी जो है वो एकदम नीचे आ गई क्योंकि उसने यहां पर नीज को डाउन किया, घुटनों को बेंड दी while standing और kneeling. तो वो यहां पर ऐसे ही खड़े रहे लेकिन घुटनों में बेंड सी थी कि यह सुनकर कि जिस बंदे को मैंने मार डाला है वो मेरा बेटा ही है. And his eyes fell on the stone tight on his son's arm. और आंखें उसकी या नजर उसकी पड़ी उस कीमती पत्थर पर जो सोहराब के बाजू पर बंधी थी. जब रुस्तुम अपनी शरीक हयात या अपनी बीवी से जुदा हो गए, जब बादशाह ने उसे बुलाया जंग के लिए तो अपना घर बार छोड़कर वो सल्तनत में शामिल हो गए. तो जाते जाते उसने एक कीमती पत्थर अपनी बीवी को दिया कि अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसके बाजू पर ये कीमती पत्थर बांध देना, टाइड ऑन. तो जब उस पत्थर की तरफ, उस कीमती पत्थर की तरफ नजर पड़ी जो उसकी बाजू पर बंधा था, a sharp pain pierced his heart. तो उसके दिल में एक तेज दर्द जाग उठा. यानी उसका जो लखते जिगर था, तो जब उसको जमीन पर ढाते हुए देखा तो अपने जिगर में वो तकलीफ, यानी अपने दिल में वो तकलीफ महसूस करने लगा. He gathered his son to his arms. उसने अब अपने बाहों में उस ताकतवर जिस्म को
समाने की कोशिश की, क्योंकि वो उसका लखते जिगर था। उस ताकतवर, उस निडर, उस बेबाक सोहराब की पूरे जिस्म को वो अपने बाहों में समेट लेना चाहता था। एंड क्राइड, और चिल्लाने लगे, ओह, अरे, माई सन, मेरे बेटे, आई एम रुस्तुम, मैं आपका बाप रुस्तुम हूं। आई एम योर फादर, मैं आपका बाप हूं। ही ब्रोक डाउन, break down, broke down, broken down, to succumb to mental or emotional stress, and was crying. वो जज्बाती हो गया, वो फूट फूट कर रोने लगा और जज्बाती हो गया, यह देखकर कि जिस आदमी को, जिस बंदे को, जिस बेटे को मैंने मारा, जिस नौजवान को मैंने मारा, वो मेरा ही बेटा है। एंड कुड नॉट स्पीक एनी मोर, इसके सिवा वो और कुछ नहीं कहता था। थ्रू हिज आर्म्स अराउंड सोहराब, अपनी बाहों को सोहराब के जिस्म के इर्द गिर्द लपेटता था। एंड सोहराब clasped him to his heart and wept. रोने तो लगा, फूट फूट कर रोने लगा, उन्हें सोहराब की गिर्द डालकर अपनी बाहें उससे कसकर अपने दिल से लगाया और रोने लगा। एंड wept, weep, wept. Sohrab looked at his father's face. सोहराब अपने बाप के चेहरे की तरफ देख रहा था। एंड said, और उसे कहा, फादर, बी comforted, मेरे बाप, वालिद साहब, बी comforted, सब्र कीजिए। that you and I have found each other. हम दोनों जो खो चुके थे। वालिद साहब सब्र कीजिए, क्योंकि आपने और मैंने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। I have found each other. Do not grieve, गम न कीजिए। Or what fate has brought about, किस्मत में जो कुछ लिखा था वो तो मिल गया। Fulfill this wish of mine, मेरे एक वादे को पूरा कीजिए। Carry me to your home, मुझे अपने घर ले जाइए। And wish of mine, and bury me, और मुझे दफन कीजिए, dear, वहां, so that people
who pass, ताकि जो लोग वहां से गुजर जाएंगे, by will say, वो जरूर ये कहेंगे, सोहराब the mighty Rustum's son lies here. सोहराब ताकतवर रुस्तुम का बेटा लेटा है यहां. सोहराब ताकतवर रुस्तुम का, माइटी रुस्तुम, ताकतवर रुस्तुम का बेटा, लाइज हियर, यहां पड़ा है. होम हिज ग्रेट फादर डिड इन ignorance kill. होम हिज ग्रेट फादर, जिसके अजीम बाप ने, डिड इन इग्नोरेंस, बेखबरी से, किल हिम, उसको मार डाला, अपने बेटे को मार डाला. जिसे मार दिया था उसके अजीम वालिद ने बेखबरी में. So this was the end of this story. So now here we say Rustum's sword pierced his side and he sank to the ground. Sohrab looked up and cried, Rustum, Rustum. तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी इस स्टोरी की एक ब्रीफ समरी बन सकती है. तो इस स्टोरी को कम से कम एक पेज में ब्रीफ समरी लिखकर इस स्टोरी को आप इससे फिर रिमाइंड कर सकते हैं. So dear students, here we conclude this story and we have now completed our story portion of this book. So now here I would like to finish this class here. Thank you.